Hello students, this is Tanum Malik and today our poem is The Tale of Custard the Dragon, written by Ogden Nash. This is a beautiful poem just like a fairy tale, and this poem gives a strong message in the end. So let's start. Let's read about the poet Ogden Nash. Ogden Nash was an American poet and he is famous that he wrote more than 500 pieces of poetry. Moreover, his style of writing is unconventional. जैसे बाकी राइटर्स लिखते थे उससे बिल्कुल डिफरेंट तरह से ये लिखते थे. And he was declared by the New York Times country's best known producer of humorous poetry. ऑग्डन नैश की पोएट्री बहुत ही कॉमिकल होती है. Nash is best remembered for his nonsense poetry. Now, nonsense poetry doesn't mean that he didn't write good poems, but the thing is, he wrote in a different way. So, the theme of the poem is appearance versus reality. Poet shows that जैसे हम दिखते हैं रियलिटी उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है. सो पोम में जो कैरेक्टर्स हैं अ कैट, डॉग एंड अ माउस वो प्रिटेंड करते हैं दैट दे आर वेरी ब्रेव, बट जब असली में मुसीबत आती है सो थिंग्स आर टोटली ऑपोजिट. द मेन प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द पोम अ ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन, he pretends that he is nothing in front of them, but when the crisis appears he is the one who proved dangerous. So let's read the poem. So these are the beautiful characters of this poem. First is Custard. Custard is the main protagonist. Then Ink, Belinda, Blink and Mustard. She is a little girl Belinda who lives in a small white house and these are her 4 pets. Belinda एक छोटे से घर में अपने 4 pets के साथ रहती है. So this is the first stanza. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a yellow trulio little pet dragon. Belinda lived in a little white house with her 4 pets. उसके पास 4 pets थे. They are a little black kitten. छोटा सा black kitten था और एक grey कलर का mouse था. Little yellow dog and a little red wagon. येलो कलर का डॉग था और लाल रंग की गाड़ी थी. Wagon is cart. And a Rielio Trulio. Rielio Trulio means really truly little pet dragon. अब जो ड्रैगन है वो पेट नहीं होते हैं, लेकिन इस पोम में इसको ह्यूमरस बनाने के लिए, कुछ डिफरेंट बनाने के लिए ड्रैगन को एज अ पेट प्रेजेंट किया गया है. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हर ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. Now in this stanza, the names of the pets are mentioned. So first is little black kitten. जो ये black कलर का kitten है इसका नेम है Ink. अब जो Ink है वो dark कलर की होती है इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं Ink. Little grey mouse इसका नेम है Blink. अब Blink का मतलब होता है बहुत जल्दी से पलक झपकाना और जो माउस है वो जल्दी से गायब हो जाते हैं तो इसका नेम है Blink. Ink, Blink. नेक्स्ट इज द लिटिल येलो डॉग. अब जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड अपने आप में ही एक येलो कलर होता है और यहाँ पे जो डॉग है उसका कलर भी येलो है तो मस्टर्ड डॉग. ड्रैगन वॉज अ कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. अब जो ड्रैगन है उसका कोई भी कलर मेंशन नहीं किया गया है तो इससे हम यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि ड्रैगन के साथ पार्शियलिटी की गई है. एंड अदर थिंग इज जो कस्टर्ड है जिसे हम खाने में खाते हैं दैट इज स्वीट इन टेस्ट. Here the custard is also very innocent and very sweet. Now in this stanza there is description of Custard the dragon. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose and really truly daggers on his toes. Now Custard the dragon is described as it has big sharp teeth. Spikes on the top of him. There are spikes on his scales.
स्केल्स मीन्स द थिक लेयर्स ऑन हिज बॉडी। जैसे क्रोकोडाइल की स्किन होती है वो बहुत थिक होती है और उसके ऊपर ऐसे स्केल्स बने होते हैं। माउथ लाइक अ फायरप्लेस, हिज माउथ एंड नोज दे आर लाइक अ फायरप्लेस, क्योंकि उससे वो बहुत सारी फायर निकालता है। एंड डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके हाथों में और पैरों में खंजर जैसे नाखून हैं। So here the dragon is presented as a very dangerous and powerful creature, but in reality all the other creatures treat him as the most weak creature. बाकी ये सभी कैरेक्टर्स ड्रैगन को अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा, Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. Now in this stanza, poet represents physical appearance of these characters कि ये physically कैसे दिखते हैं। बेलिंडा इतनी ब्रेव दिखती है जितने के बहुत सारे बियर हों एक बॉक्स में। अब अगर एक बॉक्स में बहुत सारे बेयर हों तो वो बहुत ही ब्रेव होंगे और उनसे सभी एकदम से डर जाएंगे। एंड इंक एंड ब्लिंक, इंक और ब्लिंक एक साथ लायन को भी भगा सकते हैं। मस्टर्ड, मस्टर्ड इतना ब्रेव है जितना कि एक टाइगर गुस्से में होता है। बट कस्टर्ड, कस्टर्ड ऐसा है जो हर टाइम रोता रहता है और वो हर टाइम एक सेफ प्लेस ढूंढना चाहता है, वो हर टाइम एक केज में रहना चाहता है। नाउ द थिंग इज all these characters are very confident about their abilities, but Custard बहुत ही low confident है और अपने आप को बहुत weak मानता है। Belinda tickled him, she tickled him unmercifully. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. Now in this stanza, all the other characters are making fun of really truly dragon. Belinda tickled him. Tickling means जब हम किसी को गुदगुदी करते हैं। She tickled him unmercifully. लेकिन बेलिंडा उसे अब परेशान कर रही है। Ink, Blink and Mustard, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं और सेटारिकल वे में कस्टर्ड को कहते हैं दैट कस्टर्ड इज अ हीरो। वो ड्रैगन का मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि ड्रैगन बहुत जल्दी डर जाता है और अपने आप को डिफेंड नहीं करता। दे ऑल सैट लाफिंग, वो सब एक साथ रेड कलर के कार्ट में बैठकर उसके ऊपर जोर जोर से हंस रहे हैं। रियली ट्रूली अ कॉवर्डली ड्रैगन, लेकिन जो ड्रैगन है कस्टर्ड वो किसी को भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है और ना ही उसे बिल्कुल भी गुस्सा आता है। Now all of them are continuously making fun of Custard the dragon. Why? Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe age. अब सभी मिलकर कस्टर्ड के ऊपर जोर जोर से हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि कस्टर्ड कभी भी अपने आप को डिफेंड नहीं करता और हर टाइम छोटे बच्चे की तरह रोता रहता है। बेलिंडा इज गिगलिंग, गिगलिंग मीन्स बहुत जोर जोर से हंसना कि पूरा घर हिलने लग जाए। एंड ब्लिंक सेड वीक, ब्लिंक माउस की तरह गिगल कर रहा है, माउस की तरह हंस रहा है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, अब क्योंकि ये छोटे बच्चे की तरह रोता रहता है तो इंक और मस्टर्ड बार बार उसकी एज पूछ रहे हैं। वाई? बिकॉज कस्टर्ड हर टाइम एक सेफ प्लेस ढूंढता रहता है जहां वो अकेले में बैठ सके। तो सभी बाकी फ्रेंड्स मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं और बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। एंड कस्टर्ड इज नॉट एट ऑल डिफेंडिंग और सेइंग अ सिंगल वर्ड। नाउ ऑल आर लाफिंग, ऑल आर इन अ गुड मूड, बट समथिंग अनप्लेजेंट हैपेंड. Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Now, in this stanza, poet represent that जब सभी लोग ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे थे तो एकदम से उन्हें एक शोर सुनाई देता है। जैसे ही शोर आता है, मस्टर्ड ग्रोल्ड, मस्टर्ड जो कि डॉग है वो गुर्राया, ग्रो, एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सभी पलटकर देखने लगे।
इंक भी जोर से चिल्लाया, म्याऊ, एंड ओह क्राइड बिलिंडा, बिकॉज देयर वॉज अ पायरेट, एक रॉबर घर में घुस आया है जो कि एक विंडो में बैठा हुआ है। Now this seems to be a dangerous situation and all of them are petrified. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Now this whole stanza is about the description of the robber. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसने दोनों हाथों में पिस्टल पकड़ी हुई है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ डैगर, उसने अपने टीथ में भी एक डैगर पकड़ा हुआ है। उसकी बियर्ड, उसकी दाढ़ी ब्लैक कलर की है और उसकी एक लेग वुड की बनी हुई है। इट वॉज क्लियर, अब ये चीज इससे क्लियर हो गई है कि जो रॉबर ये घर में घुस आया है, इसका जो पर्पस है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने बहुत सारे हथियार उठाए हुए हैं और वो इन्हें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने आया है। नाउ ऑल ऑफ देम आर स्केयर्ड एंड क्राइंग फॉर हेल्प, ऑल ऑफ देम आर रनिंग हियर एंड देयर। Belinda paled and she cried, help, help, but Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse Blink was strategically mousehold. Now everybody is in a dangerous situation and they are asking for help. जैसे ही बिलिंडा उस रॉबर को देखती है, उसका रंग पीला पड़ जाता है। शी पेल्ड, और बिलिंडा जोर जोर से रो रही है, हेल्प हेल्प, बट व्हाट अदर पेट्स आर डूइंग। जैसे ही मस्टर्ड रॉबर को देखता है, फ्लेड विद अ टेरिफाइड हेल्प, वो बहुत डर गया है और इधर उधर भाग रहा है। इंक लिटिल किटन, वो जल्दी से एक जगह ढूंढकर घर में छुप जाता है। एंड दैट लिटिल माउस ब्लिंक, वो एक स्ट्रैटेजी के तहत जल्दी से अपने होल में छुप जाता है। नाउ व्हाट दे ऑल आर डूइंग, दे ऑल आर आस्किंग फॉर हेल्प, नोबडी इज हेल्पिंग ईच अदर, they are protecting themselves first. Now who is going to save them from that robber? But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clang and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a worm. अब जब सभी कैरेक्टर्स को हेल्प की जरूरत थी तो एकदम से आ जाता है कस्टर्ड, जैसे एक मूवी में हीरो की एंट्री होती है। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और जो ड्रैगन है उसकी आवाज आ रही है एक इंजन की तरह। क्लैश्ड हिज टेल, क्लैश्ड हिज टेल मीन्स वो एकदम से जा टकराया, किसके साथ? रॉबर के साथ। With a clatter and a clang, these are sounds of dragon. जैसे ही ड्रैगन चलते हुए रॉबर की तरफ आ रहा है, these are his sounds, clattering, jangling. He went at the pirate. एकदम से वो झपटता है रॉबर के ऊपर, जैसे एक चिड़िया, रॉबिन एक स्पैरो होती है, जैसे एक चिड़िया एक वर्म को उठाने के लिए उस पर झपटती है। So what does it show? The dragon is very brave and he is the only one who is fighting with the robber. Now this is a war scene between the robber and the dragon. How dragon is fighting with the robber. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. नाउ इन दिस सीन जो पायरेट है वो बिलिंडा की ड्रैगन को बहुत घूर के देख रहा है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। एंड गल्प सम ग्रॉग, इट मीन्स फाइट शुरू होने से पहले जो रॉबर है वो थोड़ी सी ड्रिंक करता है फ्रॉम हिज पॉकेट। ही फायर 2 बुलेट्स, अब क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारे हथियार हैं, पिस्टल है, डैगर है, तो वो अटैक करता है ड्रैगन के ऊपर। लेकिन जो ड्रैगन की स्किन है वो बहुत ही थिक है विद अ लॉट ऑफ स्केल्स, तो उसे कोई भी असर नहीं पड़ता। लेकिन जो कस्टर्ड है वो बहुत गुस्से में है और बहुत ही पावरफुल है, और वो एक ही बार में उसको गल्प कर जाता है, उसको निगल जाता है। तो इन दिस वे द ड्रैगन एट द रॉबर, इस तरह से ड्रैगन रॉबर को उसके टुकड़े टुकड़े करके खा गया। तो व्हाट डज इट शो? He is the one who is brave of all the creatures. और अगर ड्रैगन उन्हें नहीं बचाता है तो रॉबर शायद सबको
मार देता. नाउ दिस इज द रियल हीरो. नाउ इट इज द ड्रैगन हु सेव्ड ऑल ऑफ देम फ्रॉम द पायरेट. सो सबका नेचर उस ड्रैगन के लिए एकदम से चेंज हो गया. नाउ दे ऑल आर चेंज्ड एंड बिहेविंग इन अ टोटली डिफरेंट मैनर. Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Now the scene is जब ड्रैगन ने उस पायरेट को खा लिया है, पूरा स्वेलो कर लिया है, सो एवरीबडी इज हैप्पी क्योंकि जो खतरा है वो टल चुका है. सबसे पहले बिलिंडा ड्रैगन को गले लगाती है. मस्टर्ड जो डॉग है वो उसको लिक करता है जैसे कि बाकी डॉग्स प्रिटेंड करते हैं. किसी को भी इस चीज का दुख नहीं है कि जो पायरेट है वो मर चुका है. इंक एंड ब्लिंक ये खुशी में नाच रहे हैं. अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट. सभी लोग ड्रैगन के आसपास खड़े हैं और बहुत ही खुश हैं. सभी उसकी प्रेज कर रहे हैं. लेकिन जो ये प्रेज कर रहे हैं ड्रैगन की, दिस इज जस्ट फॉर अ मिनट. जल्दी ही सब फिर से बदलने वाले हैं. नाउ कस्टर्ड द ड्रैगन गॉट दैट प्रेज फॉर अ वेरी लिटिल टाइम. अब फिर से सब लोग अपनी अपनी तारीफ करने लग गए हैं. हाउ बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड. एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक. We would have been 3 times as brave as we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Now the poet shows that all the characters are overconfident. But on the contrary, the Custard the dragon is underestimated himself. The Custard the dragon has low confidence. Now after some time, all the creatures praise themselves. सभी क्रिएचर अपनी तारीफ में लग गए. सबसे पहले जो मस्टर्ड है वो अपनी तारीफ में कहता है, अगर मैं उस टाइम डरा नहीं होता तो मैं डबल पावर के साथ लड़ता. अब इसके बाद इंक और ब्लिंक भी पीछे नहीं रहे. दे सेड, हम अगर डरे नहीं होते तो हम 3 गुना पावर के साथ लड़ते. अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं और ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी इन्हें कायर ना कहे. नाउ व्हाट अबाउट ड्रैगन जो कि एक रियल हीरो है. ड्रैगन फिर से अपने आप को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करता और क्योंकि उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है वो सबकी बात मान लेता है. ही एग्रीज दैट ऑल ऑफ देम आर ब्रेवर देन हिमसेल्फ. अब कस्टर्ड मान लेता है कि बाकी सभी क्रिएचर उससे ज्यादा बहादुर हैं जबकि रियलिटी इज टोटली डिफरेंट. अब जबकि खतरा टल चुका है तो घर के सभी सदस्य अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए हैं. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and little grey mouse and her little yellow dog and little red wagon and her really or truly little pet dragon. All the creatures, the kitten, grey mouse, dog and pet dragon सभी फिर से खुशी खुशी रहने लगे. Now as the crisis is over, all the creatures and Belinda pretended as they are the bravest creature in the world. Now this is a repeated stanza. Poet shows all the creatures are again very confident because they have self-respect. But on the other hand, the dragon, who is the most powerful, जिसने सबको बचाया, he has no self-respect. Custard the dragon has no self-respect. It again cries for a safe cage. अभी भी जो ड्रैगन है वो एक सेफ प्लेस के लिए रोता रहता है. उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ना ही कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है. और यही वो कारण है कि बाकी सभी कैरेक्टर्स जो कि खुद इतने वीक हैं वो इस ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं. नाउ देयर इज अ मॉरल इन दिस स्टोरी. अगर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, हम अपनी एबिलिटीज को पहचान नहीं पाते, तो बाकी सभी लोग भी हमारा मजाक उड़ाते रहेंगे और हमें लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे. So the thing is, we should have a faith in ourselves. We can do anything.
Now the style of the poem is quite different. Ogden Nash poetry is totally different from the conventional poems. The tone is unusual and it is written specially for children. आपको ये story बहुत अच्छी लगी होगी because it is just like a fairy tale and it is full of rhyming words. These words like Realio Trulio, Ink Blink, कस्टर्ड मस्टर्ड, दीज आर राइमिंग वर्ड्स और इन्हें सिर्फ इसलिए यूज किया गया है ताकि पोम में एक अच्छा सा इफेक्ट आ सके. नाउ द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज क्वाइट सिंपल. ईच स्टैंजा फॉलोज ए बी बी. दिस इज द राइम स्कीम and it is quite simple to make. We have to identify the sounds. So first sound is house, mouse. So the sound is a. तो हमने इसको अल्फाबेट दे दिया ए. अब अ का साउंड हमें कहीं नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट अल्फाबेट देंगे. वैगन, ड्रैगन, नो साउंड, तो दे आर गिवन नेक्स्ट अल्फाबेट. सेम इज रिपीटेड इन एवरी स्टेंजा. इंक, ब्लिंक, क साउंड इज रिपीटेड सो दे आर गिवन ए अल्फाबेट and the sound is repeated so they are given B alphabet. So it is quite simple. You have to practice this rhyme scheme for every stanza. So there are the poetic devices. First is oxymoron. Oxymoron means जब two contradictory conjunctions को एक साथ लिखा जाता है. For example, faith, unfaithful, loving, pain, white, black. All of these words are opposite to each other. Or we can say cold fire. Similarly, in this poem, poet ने use किया है phrase pet dragon. अब एक तरफ उसे बोला गया है pet, जिसे हम घर में रख सकते हैं, बट दूसरी तरफ वर्ड यूज किया गया है dragon. Now dragon is a big creature. इसे घर में नहीं रखा जा सकता, तो both these words are opposite to each other. Now next is simile. Simile means when we do comparison between two things. In this poem, Belinda's dog is compared with mustard and both the things are sharp in nature. Next comparison is done between dragon's mouth with a fireplace, and in this comparison the word like is also used. Next is metaphor. Metaphor means when we do comparison and give reference directly. जब हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं और रेफरेंस डायरेक्टली देते हैं. फॉर एग्जांपल, ड्रैगन की नोज को चिमनी कहा गया है और ये डायरेक्ट बोला है, इसमें एज और लाइक को यूज नहीं किया है. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मीन्स नॉन ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दे देना. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस पोम Belinda's pets are given human ability to speak and tease. जितने भी पेट हैं वो एनिमल्स हैं, लेकिन उनमें ये एबिलिटी नहीं होती है टू स्पीक एंड टू टीज. दीज आर द एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स बट दीज आर गिवन टू दीज पेट्स, सो पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड. नेक्स्ट इज ओनोमेटोपोइया. पोएट यूजेस दिस डिवाइस इन द वर्ड वीक एंड गिगल. इस डिवाइस का मतलब होता है ऐसा वर्ड यूज करना जिससे हमें उसका नेचुरल साउंड पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डू भाव भाव, तो इससे हमें पता चल रहा है दैट दिस इज द वॉइस ऑफ अ डॉग. एंड इफ आई डू म्याऊ, तो दिस इज द वॉइस ऑफ अ किटन. तो सिमिलरली दीज आर द वर्ड्स. वीक मीन्स ये एक माउस की वॉइस है एंड गिगल मीन्स जोर जोर से हंसना. So these are onomatopoeia words. All the poetic devices are discussed here, but अगर आपको इन poetic devices को और डिटेल में करना है, so link is given in description box. So this is the end of the poem. Hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ आई होगी. Thank you. So subscribe my channel and for more videos press the bell icon. Thank you. Bye bye.